اور صبح سے ایک بیانیہ جاری ہے کرائے کے ٹٹو، کرائے کے ترجمان، جو خود کتنے محب الوطن ہیں، دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیز لے کر، شہریت لے کر، وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور غدار کس کو کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف کو. تو میں پاکستان کی عوام سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں مخاطب ہوں کہ ان سے سوال کریں کہ وہ شخص جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ہر دباؤ کے باوجود وہ وزیر اعظم، جب وزیر اعظم تھا تو ہندوستان کا وزیر اعظم واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے، کیونکہ اس وقت واجپئی صاحب کی مجبوری تھی کہ ایک ملک جو تھا وہ معاشی طور پر مستحکم ہو رہا تھا. ملک کی قومی سلامتی ایٹمی قوت بن چکی تھی. پاکستان ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا. وہ ہمسایہ ممالک کی لیے ہاتھ بڑھانا ہمسایہ ممالک کی مجبوری بن چکی تھی، اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھا. وہ وزیر اعظم جس نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، قومی وقار، پاکستان کی عزت، ملک اور قوم کی عزت کے اوپر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا. وہ وزیر اعظم جب وزیر اعظم تھا تو مودی چل کر پاکستان آیا تھا. اور کیوں آیا تھا؟ وہ نواز شریف کے گھر نہیں آیا تھا. وہ وزیر اعظم پاکستان، منتخب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے گھر چل کر آیا تھا. اور اس وقت پاکستان ایٹمی طور پہ اور معاشی طور پر مضبوط تھا. پاکستان کا ڈیفنس مضبوط تھا. پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ تھا. پاکستان کے اندر معیشت مضبوط تھی. پاکستان کی عوام مضبوط تھی. پاکستان کے اندر سیاست مضبوط تھی. تو اس وقت مودی وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے گھر چل کر آیا تھا. اور ایک طرف جب ملک کے اوپر سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط ہو، منتخب نہیں، سلیکٹڈ، آر ٹی ایس بٹھا کر مسلط کیا جانے والا جب وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ مودی کے الیکشنز کے دوران کیا کہتا ہے کہ مودی جیتے گا، اگر وہ الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ کیمپین کے دوران بات کرتا ہے. اور پھر سکوت کشمیر ہوتا ہے، پھر کشمیر کا سودا ہوتا ہے، پھر کشمیریوں کے اوپر بربریت جو پچھلے 72 سالوں سے جاری ہے، کشمیریوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. اور کیمپین کرتا ہے عمران صاحب، کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب مودی کو مس کالیں دیتے ہیں، جب مودی کے ترلے منتیں کرتے ہیں کہ ہمارا فون سنو، ہماری بات سنو، ہمارا فون اٹھاؤ، اس وقت غدار کون ہوتا ہے؟ ہم غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون خود بھی محب الوطن ہے اور پاکستان کی عوام کو اور سیاست کو بھی محب الوطن سمجھتی ہے. ہم کسی کو غدار نہیں کہیں گے، لیکن یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھا اور ہے، اس وقت فال آف کشمیر ہوا، اس وقت سکوت کشمیر ہوا، اس وقت کشمیر کا سودا ہوا. یہ کوئی تاریخ سے مٹا نہیں سکے گا. اور غدار کہتے ہیں نواز شریف کو. جب فون مودی نہیں اٹھاتا تو کابینہ میں ماتم ہوتا ہے کہ مودی نے وزیر اعظم عمران خان کا فون نہیں اٹھایا. جب پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی چوری ہوتی ہے ووٹوں کی، غدار وہ ہوتا ہے جو آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے. غدار پرویز مشرف واحد کنوکٹ ہے، اور جب اس کو لیگل سہولت دی گئی غدار آئین کو، اس وقت وزیر اعظم عمران صاحب تھے. ان کے ہی لا منسٹر
परवेज मुशर्रफ के लॉ मिनिस्टर के लीगल एडवाइज़र हैं और लॉयर हैं, तो गद्दारी के फतवे फातिमा जिन्ना, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर, अकबर भुट्टी, अहमद फराज, आसमा जहांगीर, हबीब जालिब, नवाज शरीफ, सब गद्दार हैं। और मुहिब्बुल वतन आज वो है जिसने पाकिस्तान का आइन चोरी किया, पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी किया, अदारों के ऊपर खतरनाक इल्जामात लगाए, अभी भी जब वो खुद वजीर आजम है। क्या कहा था इमरान साहब ने अमेरिका में बैठकर और ईरान में बैठकर कि किसने अलकायदा बनाई? ISI ने। ये इमरान खान के अल्फाज थे जब वो वजीर आजम है। ये मुल्क का वजीर आजम मुसल्लह अफवाज के ऊपर, जहां हमारे नौजवान अपना खून देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाया। गद्दार कौन हुआ? गद्दारी का सर्टिफिकेट देने से पहले जो उंगली आप दूसरों पर उठाते हैं, 3 उंगलियां आप पर उठती हैं। और आज अदारों का सहारा लेकर, अदारों को सियासत के अंदर घसीट कर, अपनी घटिया सियासत के अंदर घसीट कर, और अब अदलिया को अपनी सियासत में घसीट कर, परसों बैठकर क्या कहा टॉक शो में इमरान साहब ने? कहते हैं हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया और उनकी जमानत कर दी और उनको बाहर जाने दिया। इतना बड़ा इल्जाम अदलिया के ऊपर लगाया, कोई पूछने वाला नहीं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर मुल्क के खिलाफ गद्दारी की, कोई पूछने वाला नहीं। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ कंटेनर पर चढ़कर अंपायर की उंगली का इशारे का इंतजार करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। तो बात मुख्तसर इतनी है कि भाई सभी का खून है शामिल यहां की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है। और वो तमाम लोग जिनकी शहादतें, जिनके खून इस मट्टी में शामिल हैं, वो सब आज जवाब मांगते हैं। और मैं पहले एक बात कह चुकी थी कि अपनी आवाज बंदी कर लें, अपनी आवाजें बंद कर लें, क्योंकि जवाब देना हमें भी आता है। और पहले नवाज शरीफ साहब ये बात वाजिया कर चुके हैं कि जिस सियासत में इज्जत नहीं, जिस सियासत में वकार नहीं, उस सियासत की जरूरत अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं है। आपने पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेल में डालना है, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, क्योंकि आज वो नवाज शरीफ के नजरिए के साथ खड़ा है, वो आइन के साथ खड़ा है, वो कानून के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के जमहूर के साथ खड़ा है। आज गिरफ्तार कर दिया वो सारा टोला जिसने आटा चीनी चोरी की, जिसने सकूते कश्मीर किया, जिसने कश्मीर का सौदा किया, जिसने बिजली गैस चोरी की, जिसने पाकिस्तान की आवाम की मईशत चोरी की, रोजगार चोरी किया, अद्वियात चोरी की, वो काबीना का हिस्सा हैं। वो आज कराए के तर्जुमान हैं। और ये पाकिस्तान की आवाम अब आपकी बात मानने वाली नहीं, क्योंकि उनको वाज़िया तौर पर मालूम है कि जो आइन शिकनी करता है वो गद्दार होता है, जो मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश करता है वो गद्दार होता है। और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट पाकिस्तान की आवाम जिनको देना है उनको दे चुकी है। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि कौन मुहिब्बुल वतन है, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, तरक्की दी, अंधेरे मिटाए, दहशतगर्दी ख़त्म की, रोज़गार दिया, मुल्क की सलामती को मजबूत किया, पाकिस्तान के आइन को मजबूत किया। अगर पूरे पाकिस्तान की आवाम इस बात की गवाही दे जो मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, तो मुहिब्बुल वतन नवाज शरीफ, पाकिस्तान की आवाम और आप जितने लोग आज यहाँ खड़े हैं, उनको किसी किस्म का हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इस रवैये अगर बंद ना हुआ तो हमारी आवाज़ें बंद नहीं होंगी। इस रवैये और इस इल्ज़ाम की अगर ज़बान बंदी ना हुई तो हम गिन गिन कर बताएंगे कि गद्दार कौन है। हम नाम लेकर बताएंगे कि गद्दारी किसने की। और ये कागज लहराकर कुछ लोग पंजाब में
और कुछ लोग वफाक में सुबह दोपहर शाम जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक खतरनाक बयानियां है, और ये खतरनाक उन लोगों के लिए है जिसने आइन की गद्दारी की। हमारे लिए ये बयानियां ना नया है और ना खतरनाक है। हर जगह के ऊपर बैठकर मुल्क का वजीर आजम जो गुफ्तगू कर रहा है उसका सवाल पूछें, उससे पूछें कि उसके अज़ाइम क्या हैं। और अगर मैंने पहले कहा, मैं रिपीट कर देती हूं कि अगर ये ज़बान बंदी ना हुई और इसी तरह अदारों को घसीटना अपनी गंदी सियासत में बंद ना हुआ तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे आपके लिए। और आखिर में मैं दोबारा एक दफ़ा, मुझे मालूम है कि मीडिया के ऊपर जो पैमरा का नोटिस आया हुआ है, यह है वो फाशिस्ट माइंडसेट जिसने मीर शकीलुर रहमान को अरेस्ट किया, जिसने 24 की स्क्रीनें बंद की, सहाफ़ियों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं जब वो एक जमहूरी प्रोटेस्ट को कवर करते हैं, नियो टीवी की स्क्रीन्स बंद हुई, और जितने सहाफ़ी हैं जिनको प्रोग्राम्स बंद किए गए, आज तक जिन चैनल्स के ऊपर प्रेशर है और एक पैमरा का गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर अवाम अब आपकी बात मानने वाली नहीं। अवाम को मालूम है आइन शिकनी करने वाला गद्दार है, मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करने वाला गद्दार होता है। ये कहना है मरियम औरंगज़ेब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि हम ये सियासत में जो कर रहे हैं ये आगे जाकर तहरीक चलती रहेगी, और MQM और ये तमाम अपोजिशन जो मुत्तहिद है ये तहरीक अब नहीं रुकेगी, इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। ये कहना है मरियम औरंगज़ेब का। नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम की इज्जत पर कभी समझौता नहीं किया।